Now dear students, we are going to talk about the class aves. Class aves means group of birds. It is third class. Before it, the amphibia and reptilia is over. It means it is overall the matter of superclass Tetrapoda. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, superclass Tetrapoda and class Aves. चिड़ियों का ग्रुप है, बर्ड्स का ग्रुप है. ठीक है, आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा सा नोट करते हैं. यहाँ पे आप लोग भी नोट करिएगा वन बाय वन. ठीक है, स्टडी ऑफ एवीज और स्टडी ऑफ बर्ड्स, इट इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी दिमाग में बैठाइए. लॉगस वर्ड या लॉजी वर्ड कहीं लगा, इसका मतलब स्टडी है. स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज ornithology. You are well familiar with the scientist named Dr. Salim Ali. Dr. Salim Ali. He was the great ornithologist. Ornithologist means the bird specialist, and the ornithology is the study of bird. Okay. The word aves. This word aves is derived from the word avis. It is the Greek word avis. It means the bird. So avis word related with the word Greek word avis, it means the bird or group of birds. Now back to the habitats. Your heading will be habitats. Point 1 regarding the habitats or habits. All birds are arboreal and having ability to fly, except the flightless bird. Except the flightless bird. Flightless bird means, listen carefully, flightless bird means the bird that cannot fly, and the bird that can fly are called as arboreal. Bird that cannot fly are actually terrestrial in nature. It means live on land. Keep in mind. Now back to the next important features. Some birds are aquatic like penguin. Some birds are aquatic or live near the water or live near the source of water. That is, penguin is not totally aquatic. It is actually live over the ice or icy area, but most of their life spent near the water source. It means they all are actually aquatic. Like the other birds like the duck etc. are actually feeds or depend on the water body, so they are sometimes assigned as the aquatic, but for the laying egg and other purpose they require land. So these are some habitats of a common bird. Keep in mind. Now back to the other important and morphological features regarding the body and other internal physiological characters. Listen carefully. The aves is actually belong to tetrapods. It means consists the 4 limbs. It means it belong to tetrapods. As like the amphibia and reptilia, it possesses 4 limbs. Keep in mind. The 2 limbs, that is the front earlier 2 limbs is known as 4 limbs. यहाँ पे देखिए, इस 4 का मतलब 4 और इस 4 का मतलब आगे का 2 पैर. ठीक है. The 2 limbs, the first 2 limbs, that is the 4 limbs, is modified into fly, that form the wings. The first 2 limbs or the 4 limbs are modified in form of the wings, and that is actually used to or help in the birds to fly. Keep in mind. In flightless bird, the 4 limbs are reduced, so they cannot fly. दिमाग में आप एक एक चीजों को बिठा के रखें. फ्लाइटलेट बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं, छोटी साइज के होते हैं, मोटे होते हैं, इसलिए वो फ्लाई नहीं कर पाते, उड़ नहीं पाते. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ईयर पिना एब्सेंट. आपके बॉडी में जो कान है ऐसे, ये कान का जो पिना होता है वो आपके बॉडी में है, बट इसमें एवीज में एब्सेंट होता है. कोई भी एवीज में ईयर पिना नहीं होता है. लेकिन स्पेशल बात क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फाउंड.
tympanic membrane found. What is tympanic membrane? In previous video I have told you the eardrum is known as tympanic membrane. That is found in bird. It means bird have ability to detect the sound. It should be in your mind. Bird have ability to detect the sound or trap the sound. Means bird have ability to listen your sound. Keep in mind. Now back to the next special features. Fourth, the first, second, third. Fourth is the hind limbs used to walk. Hind limb used to walk. जो पीछे के दो पैर होते हैं वो क्या होते हैं? चलने फिरने के लिए यूज होते हैं. ठीक है. और उसमें स्केल भी होता है. स्केल ऑफ हाइंड लिम्स प्रेजेंट. हाइंड लिम्स में जो स्केल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. हाइंड लिम्स अगर किसी चिड़िया को पकड़ेंगे तो उसका पैर खुरदुरा होगा. दैट इज ड्यू टू द scales. Scales are also present in reptilia and scales are also present in the avies. That is only up to the hind limbs. Means rest of the body part do not possess any kinds of scales except beak. Beak में होता है. ठीक है. नेक्स्ट अभी बताएंगे. नेक्स्ट ओवरऑल फीचर्स की बात करें. इसको सब मिटा दें फिर आपको समझा रहे हैं आगे की चीजों. The unique features of birds. Birds body, overall body of birds covered by feathers. It should be in your copy. Overall bird's body is covered by the feathers. Feathers छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे. feathers 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन आपको पढ़ा होगा? कंटूर फेदर. कंटूर फेदर. सेकेंड टाइप फेदर्स आपने पढ़ा होगा बॉडी फेदर. बॉडी फेदर. एंड थर्ड टाइप आपने पढ़ा होगा डाउन फेदर. छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा. सो फेदर्स क्या होते हैं आप देखे होंगे. ऐसे चिड़िया का कभी कभी गिरा देती है. देखे होंगे घर के आसपास ऐसे ये छोटे छोटे फेदर्स. बैडमिंटन का जो चिड़िया होता है इसी से बनता है. ठीक है. ये फेदर्स होते हैं. फेदर्स में कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं. इसको मैं आपको समझा दूं. हालांकि हायर क्लासेस में आपके काम आएंगे. इसको बोलते हैं कैलेमस. क्या बोलते हैं? कैलेमस. जो बाहर निकला होता है. और जो अंदर होता है इसको बोलते हैं रैकिस. क्या बोलते हैं? रैकिस. और ये जो दिख रहा है हेयर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज नोन एज वेन. तो ये आपको जानना है कि फेदर्स जो घर में आसपास रहते हैं उसके ये कॉमन उसके पार्ट्स हैं. ठीक है. कैलेमस जो बाहर निकला, डंडिल हंडिल टाइप का, डंडा टाइप का, और ये वेन है और ये रैकिस है. ये कॉमन फेदर्स के एग्जांपल हायर क्लासेस में आपको पढ़ेंगे. अब आते हैं कि कंटूर फेदर्स, बॉडी फेदर्स और डाउन फेदर्स एक कॉमन बर्ड्स के कहाँ किस पार्ट्स में होते हैं. तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बर्ड्स का एक छोटा सा डायग्राम बना दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो. जैसे मान लो कि ये कॉमन बर्ड्स है कोई भी. ठीक है. कोई भी बर्ड्स मान लीजिए. तो इसका जो ये टेल एरिया है, टेल एरिया, इसी के आसपास यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे जो वो फेदर्स होते हैं इसको बोलते हैं डाउन फेदर्स. यहाँ पे जो फेदर होगा उसको बोलेंगे डाउन फेदर्स. तो आपको दिमाग में द फेदर्स एट द रीजन ऑफ टेल एरिया इज नोन एज डाउन फेदर्स. यहाँ पे जो भी फेदर्स होते हैं यहाँ पे मतलब टॉप एरिया में, डॉर्सल व्यू में, इसको बोलेंगे कंटूर फेदर्स. कंटूर फेदर्स यानी टॉप एरिया में. ठीक है. ये टॉप में होते हैं. और यहाँ कहाँ पे होते हैं? टेल एरिया में. ठीक है. ये टेल है. टेल एरिया में डाउन फेदर्स होते हैं. और डाउन जो बॉडी एरिया में होते हैं यहाँ पे माने वेंट्रल साइड में, इसको बोलेंगे बॉडी फेदर. बॉडी फेदर्स. तो ये 3 फेदर्स कौन है? कंटूर फेदर्स एट द टॉप मीन्स एट द डॉर्सल साइड, बॉडी फेदर्स एट द वेंट्रल साइड एंड डाउन फेदर्स एट द पोस्टीरियर साइड टुवर्ड द टेल. ठीक है. तो ये आपको अच्छी तरह जानना है. अब एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि यही डाउन फेदर के आसपास यानी टेल एरिया के आसपास एक ऑयल ग्लैंड होता है. ऑयल ग्लैंड. ये बर्ड्स की खास बात होती है. फीचर्स में ऑयल ग्लैंड जरूर लिख लीजिए. ऑयल
ग्लैंड्स। ये ऑयल ग्लैंड्स से ऑयल सिक्रीट होता है। ये बर्ड्स हमेशा आप देखेंगे बैठी रहती है तो अपने बीक को बराबर ऑयल ग्लैंड्स के आसपास ले जाती है, यानी पूंछ के आसपास ले जाती है और वहां से ऑयल निकाल के पूरे शरीर पे रब करती है। इससे इसका शरीर जो है पूरी तरह से लुब्रिकेंट्स रहता है और वाटर रेजिस्टेंस रहता है, यानी वाटर इस पे पड़ता नहीं है और एब्जॉर्ब नहीं होता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने पाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड इन द पोस्टीरियर पार्ट टुवर्ड द टेल एरिया एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स की और खास बात क्या है? बर्ड्स पॉजेस बीक, दिस इज द बीक। बर्ड्स के पास क्या होती है? बीक होती है। एंड बीक आर टूथलेस। द बर्ड्स डू नॉट हैव एनी टूथ इनसाइड द बीक, यानी कि बर्ड्स के जो बीक के अंदर होता है दांत नहीं होता है, ठीक है। ये होल इंजेस्ट करते हैं, यानी कोई चीज खा रहा तो पूरा खा जाएंगे, ठीक है। आगे बताएंगे इसके बॉडी में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पूरे अगर होल खा जाए तो उसको क्रश करने का काम आता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट की बात करें, इसके क्लॉज और नेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, क्लॉज एंड नेल्स प्रेजेंट, ठीक है। बट ये जो होते हैं वो टेट्राडेक्टाइल होते हैं, टेट्राडेक्टाइल। इससे पहले जो पढ़ा था रेप्टिलिया, वो क्या थे? पेंटाडेक्टाइल्स थे। उसके बॉडी में जो लिम्स थे उसमें 5-5 उंगलियां थी और बर्ड्स में क्या होते हैं? 4 उंगलियां थी, 3 बड़ी होती है और एक छोटी सी होती है, ठीक है, जो हेल्प करती है किसी चीज को पकड़ने में, ठीक है। बर्ड्स किसी चीज को अगर पकड़ती है तो इस तरह से उसको पकड़ लेती है कि उसको पूरा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे बैठा और उसको आसानी से पकड़ लेते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज पर्चिंग, पर्चिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज क्लैस्पिंग, ठीक है। पर्चिंग, PERCHING, पर्चिंग, यानी कि बर्ड्स, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई बैठा, ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको हटा दें तब तो आपको समझ में आ जाएगा। बर्ड्स का जो अंदर का जो पंजा होता है वो इस तरह से होता है। मान लो कि ये एक पंजा है, ये दूसरा पंजा है, ये तीसरा पंजा है, ये चौथा पंजा है, ठीक है। तो उसके पंजे में के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक, और वो सब क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और ये उसके बाकी के पैर वाले हिस्से में जाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा पर्चिंग क्या होता है। ये जब बॉडी पे लोड पड़ता है ऊपर से, यानी कि चिड़िया के बॉडी पे जब लोड पड़ता है तो ये ऊपर खींचता है, ये थ्रेड ऊपर खींचेगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा? फोल्ड होगा। जैसे इसके अंदर अगर मान लो थ्रेड है तो यहाँ से अगर हम खींच रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा। यानी कि बर्ड्स अगर किसी उस पे बैठती है, डाल पे या फिर वायर पे, तो ऑटोमेटिक उसके बैठते ही वो ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाएगा। यानी कि आप देखे होंगे बर्ड्स मर जाती है तब भी वो लटकी रहती है ऐसे, मतलब एक बार बैठी तो उसको ऐसा नहीं कि अपने से, हम जैसे अपने से पकड़ रहे हैं तो अपने से नहीं पकड़ती है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, या थ्रेड, उसको टेंडन बोलते हैं, ये आसानी से उसको खींच लेता है और उससे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो क्लॉज एरिया है वो जकड़ लेता है। ये इधर मूव करता है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला नेल, ये इधर मूव करता है, बाकी 3 इधर, तो आसानी से कोई चीज बीच में यहाँ पे पकड़ में आ जाती है, ठीक है। इससे प्रे वगैरह अपने शिकार को पकड़ने में काम आती है। सो व्हाट इज पर्चिंग मैकेनिज्म? व्हाट इज पर्चिंग मैकेनिज्म? मैकेनिज्म टू होल्ड an object by the bird's claws is known as perching mechanism. And what are the mechanism behind the perching? When birds put over the object, when birds sit over the object, then the thread inside the claws automatically pulls toward the body in order to shrink the claws, in order to hold the claws tightly over the object. ये आप ऐसे एक्सप्लेन कर लीजिएगा. That phenomenon is called as perching mechanism, and that is the mechanical process. There is no any biological. That is the mechanical process. It should be in your mind. Now अब इसको मिटा करके अगले पॉइंट्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं. बर्ड्स के लिए नेक्स्ट पॉइंट्स में बात कर दूं. आप एक एक पॉइंट्स को आप नोट करते रहिएगा. बर्ड्स बॉडी इज बर्ड्स पॉजेस द मोनोकोंडाइलिक स्कल. मोनोकोंडाइलिक स्कल से पहले मैं बताया था कि एम्फीबिया डाइकोंडाइलिक होते हैं
और रेप्टिलिया क्या होते हैं, मोनोकोंडाइलिक होते हैं, और बर्ड्स क्या होता है, वो भी मोनोकोंडाइलिक होता है, ठीक है। और आप प्रीवियस वीडियो को आप देख लेंगे तो ये मोनोकोंडाइलिक का कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द एयर सैक्स प्रेजेंट। ये एयर सैक क्या करते हैं, ये बलून लाइक होते हैं, हवा भर जाती है तो बॉडी का वेट क्या होता है, लाइट हो जाता है। ये एरियल एडॉप्टेशन है, एरियल एडॉप्टेशन, ठीक है। जो जो बर्ड्स का एडॉप्टेशन है वहां पे मैं स्टार लगा दूंगा, वो स्पेशल आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। यानी कि बर्ड्स हवा में उड़ पाती हैं तो उसके पीछे के बॉडी में क्या क्या ऐसे फीचर्स है जिसकी वजह से वो उड़ते हैं, यानी कि उसका बॉडी में क्या ऐसे स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से हेल्प मिलता है उड़ने में। तो पहला तो आपको मिल गया एयर सैक। इससे पहले फेदर्स, वो भी हवा में उड़ने में उसको जो है हेल्प करते हैं, बॉडी को लाइट वेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, स्ट्रीम लाइन बॉडी होता है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रीम लाइन बॉडी, फॉर मोर डिटेल यू विजिट टू सुपर क्लास स्पाइसिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस, वहां पे आपको स्ट्रीम लाइन बॉडी का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, या तो उड़ने के लिए या फिर तैरने के लिए बॉडी डिजाइन होती है, ठीक है। उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट की मैं बात करूं, बॉडी में जो बोन्स होते हैं, ठीक है, वो होल उसमें खोखला होता है, उस ऐसे बोन्स को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन, न्यूमैटिक बोन, ठीक है। इसको आप दिमाग में रखना है। व्हाट इज न्यूमैटिक बोन, PNEU, इसको आप देखिएगा, PNEU। न्यूमैटिक बोन मीन्स क्या होता है, द हॉलो बोन, द हॉलो बोन, यानी कि बोन अंदर से पूरी तरह से ऐसे खोखला हो, ठीक है, यानी कि हवा ज्यादा भर सके। हम लोगों का बोन जो होता है ऐसे होता है, हवा कम होता है उसमें, ठीक है, इसमें हवा ज्यादा होता है, इससे उसके बॉडी को क्या होता है, लाइट वेट मिलता है, ठीक है। तो ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी स्टार लगा लीजिए। ये सब क्या है, उसका एरियल एडॉप्टेशन, यानी हवा में उड़ने में मदद करते हैं। न्यूमैटिक बोन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है वेयर इज न्यूमैटिक बोन फाउंड, न्यूमैटिक बोन इज फाउंड इन बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन आर फाउंड, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इट इज द कॉमन, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इज फाउंड। और इसको क्या बोलते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को सायरिंग्स, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन उसको बोलते हैं सायरिंग्स, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। ये उसके लेरिंग्स का पार्ट, हम लोगों में जो लेरिंग्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वोकल कॉर्ड, ये उसको सायरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की मैं बात करूं, लिसन, तो बॉडी इसका क्या होता है, होम्योथर्मिक होता है, होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक मीन्स दे ऑल आर वार्म ब्लडेड, दे ऑल आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड का मैंने कॉन्सेप्ट एम्फीबिया में बताया था, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना है। वार्म ब्लडेड का मतलब इसका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो हीटेड नहीं होता है, गर्म नहीं होता है। बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, ठीक है। बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का रहता है, यानी कि अराउंड 37 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके आसपास रहता है, ठीक है। एवरेज 25 रहता है, बट ये ऑप्टिमम है, ठीक है, यानी कि ये कॉमन है। कुछ बर्ड्स का 25 ऐसे मेजर किया गया, बट ये एग्जैक्ट आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करते हैं हम, लिसन, आई इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड्स। द आई इज इनक्लोज्ड विथ अ मेम्ब्रेन नोन एज निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, आपको दिमाग में रखना है। आपके बॉडी में ऐसे जो आई है, आई के कॉर्नर में यहाँ पे आपको रेड स्ट्रक्चर मिलेगा। ये आपको जो रेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है, वेस्टिजियल पार्ट ऑफ निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जैसा ही कंपोनेंट्स है, ठीक है, बट ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। इससे ये एविडेंस मिलता है कि आपका ओरिजिन बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर से भी हुआ होगा, ठीक है। ये हमारे बॉडी में कोई काम नहीं आता है। ये जो रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्लीका सेमील्यूनेरिस, सेमील्यूनेरिस, ठीक है, प्लीका सेमील्यूनेरिस बोलते हैं।
और बर्ड्स में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आई को जब वो उड़ते हैं तो हवा में इसको कवर कर लेता है, इससे आई जो है डस्ट पार्टिकल्स या फिर ड्राई एयर से उसको बचा रहता है, ठीक है। तो निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन जो क्या करता है, ये ड्राई एयर्स और डस्ट पार्टिकल से बचाता है किसको, बर्ड्स की आई को। हम लोगों में निक्टिनेटिंग मेम्ब्रेन सिकुड़ के छोटा हो गया, कम हो गया, क्योंकि यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लीका सेमिल्यूनरिस। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नेम द वेस्टिजियल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दैट इज सिमिलर टू द निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, दैट इज प्लीका सेमिल्यूनरिस। ये प्लीका सेमिल्यूनरिस कहाँ है, ह्यूमन बींग में, और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहाँ है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बर्ड्स में। ये आप दिमाग में पूरी तरह से इसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, फिर समझा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैंने इसी वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि पूरा जो बॉडी होता है उसमें कहीं स्केल्स नहीं होते हैं, लेकिन 2 पार्ट बॉडी में बर्ड्स के ऐसे होते हैं जहाँ पे स्केल्स होता है। पहला तो आप जानते हैं फुट में, दूसरा बीक एरिया में, ठीक है। जो बीक एरिया में स्केल्स होते हैं उसको बोलते हैं, यहाँ पे स्टार लगाइए, आप अपने हिसाब से पॉइंट लगाइएगा। द स्केल्स इन द बीक एरिया, स्केल्स ऑफ बीक इज नोन एज रैम्पोथीका, रैम्पोथीका, THECA, रैम्पोथीका। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ओवरऑल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। लिसन केयरफुली। टेल जो है, टेल के अंदर एक स्पेशल बोन्स होता है जो मैमल्स में हो सकता है, काऊ बफेलो में, इसमें नहीं होता, उसको बोलते हैं पाइगोस्टाइल। पाइगोस्टाइल, ये पाइगोस्टाइल रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। द टेल कंसिस्टिंग पाइगोस्टाइल बोन इज नोन एज पाइगोस्टाइलिक टेल, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया एंड आल्सो मैमेलिया। इट इज कॉमन इन मैमेलिया बट इट इज मोस्ट फीचर्स हमारे में जो मैमल्स होते हैं जैसे काऊ बफेलो, उसमें कॉक्सियल बोन होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉक्सियल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, पाइगोस्टाइल बोन होता है, और ये पाइगोस्टाइल बोन जो होते हैं बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव पाइगोस्टाइलिक बोन्स, ठीक है। तो बॉडी ऑफ बर्ड्स इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल विदाउट पाइगोस्टाइलिक बोन. Keep in mind. Now back to the physiology. Physiology and classification of the birds will discuss in next video lecture, because the video is too longer. So you should have a pre-mindset regarding the physiology, that is digestion, respiration. Also the classification will be discussed in next video lecture. Thank you.